हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट आया है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट के सेक्शन सी में। ऑलरेडी मैंने सेक्शन भी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने स्टार्ट करने वाले सेक्शन सी चैप्टर नंबर 3। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ओके, रीड द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। देखो, डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट दिए थे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in the chemical reaction. Next, atoms of given elements are identical in mass and chemical properties. Next, atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound. Next, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. 6 postulate Dalton के. Okay, next question. How were the elements named in ancient times? Explain. First of that, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपनी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर कहीं पे भी नहीं है। अगेन रिपीटेड कर रहा हूँ, ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में है, ना तो इसका आंसर है। बट यस, मैंने इसको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर बना दिया है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। तो आपको ही पता है कि भाई बुक्स के अंदर पहले लिखा है कि डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द सिंबल का यूज़ किया था इन दैट स्पेसिफिक सेंस में। आगे बात करेंगे, व्हेन ही यूज अ सिंबल, उसने सिंबल का यूज़ किया था, ये रहे देखो नीचे। फॉर द एलिमेंट्स he also meant a definite quantity of that element, and that is the one atom of the elements. Next, Berzelius suggested that the symbol of the element be made from one or the two letters लेने पड़ेंगे उसके of the name of the elements के, यानी उसके पहले जो एलिमेंट्स थे उसको उसके सिंबल के नाम से ही जाना जाता था, मतलब सिंबल से ही जाना जाता था। ओके, डन। Next, what is an ion? Classify them. The charged species are known as ions. The charged species are known as ions. Next, ions may consist of single charge atoms or a group of atoms that have a net charge on them. Next, two types of ions. Ions can be negative or positive charge. A negative charge ion is called anion, and a positively charged ion is called cations. Okay, next, what are the binary compounds and how are the formulas of these compounds written? Binary compound is a substance composed of exactly two different elements जहाँ पे होते हैं, and which are substance that cannot be simplified further chemical reactions. मतलब देखो, बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या है? दो ऐसे एलिमेंट को, डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं एंड देन न्यू कंपाउंड बनाते हैं, और वो केमिकल प्रोसेस से डिफरेंट नहीं हो सकते। उसको अपने क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड। हाउ आर द फॉर्मूला इज रिटर्न? The binary ionic compound, a metal will always be the first element होता है metal in the formula के अंदर, and the non-metal will always be the second. Like example, ammonia, NH3, nitrogen and hydrogen, right? Okay, next. Write the short note, atomicity.
A number of atoms consisting a molecule is known as atomicity. Next point, molecules of many elements such as argon, helium, etc. is a monoatomic. A molecules of oxygen consist of the two atoms of oxygen, hence is called a diatomic, जिसको O2 बोला जाता है. नेक्स्ट, इफ द थ्री एटम मतलब ऑक्सीजन के तीन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर न्यू बना दे उसको बोला जाएगा ओजोन ट्राइएटॉमिक्स. जहाँ पे फोर एटम्स कंबाइन होते हैं उसको बोला जाता है टेट्राएटॉमिक. एंड मोर देन फाइव एटम्स, यहाँ पे एनी की जगह पर डी आता है, एंड आता है, एंड मोर देन फाइव एटम्स आर कंबाइन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक. राइट. नेक्स्ट, name the elements present in the following compounds: quicklime, baking powder, potassium sulfate. तो क्विकलाइम केमिकल फॉर्मूला आएगा कैल्शियम ऑक्साइड. तो एलिमेंट कौन से है? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. सेकंड है बेकिंग पाउडर. उसके बेकिंग पाउडर क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट? एक तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट कंपाउंड है पोटेशियम सल्फेट. तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? तो पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड: कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आपको यहाँ पे ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूला दे दिए गए, उसके आपको नाम लिखना है. KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट. नेक्स्ट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट. नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, क्लोराइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है. उसके सामने पॉजिटिव आयन आपको यूज़ करना है मैग्नीशियम, सोडियम और जिंक. तो पहला आंसर दे दिया, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा मैग्नीशियम MgCl2, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा NaCl और जिंक क्लोरीन के साथ जुड़ेगा ZnCl2. उसी तरह कार्बोनेट MgCO3, सोडियम कार्बोनेट इज गिवन आर देयर एंड ZnCO3. Next, magnesium and hydroxide MgOH twice, sodium NaOH sodium hydroxide and zinc ZnOH twice zinc hydroxide. Done. So that's यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.